Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. On behalf of Corporate Pakistan Group, I'm grateful to all of you for your virtual presence at our today's conversation. This is our 20th edition of webinar, and this is 6th edition of our CPG conversations on the way forward for Pakistan. We started this series last month, and our objective is to discuss the state affairs and the different issues related to government and also other national issues, geostrategic issues with our cabinet ministers, mainstream political parties, representatives, and also the leaders from different backgrounds, different walks of life, the civil society leaders, the corporate leaders. So we started this series with Senator Shibli Faraz, the Information Minister. Our second episode was with Education Minister Shafqat Mahmood Saab. The third edition we hosted with Minister for Science and Technology, Fawad Chaudhry. We hosted the fourth edition with Syed Mustafa Kamal, the former mayor of Karachi and the chairperson of Pak Sardameen Party. And the last conversation, day before yesterday, on last Sunday, we hosted the fifth edition with Senator Shahri Rahman from Pakistan People's Party. She is the chair of Jinnah Institute, and also she is the chairperson for CPAC Committee of Senate of Pakistan. और जो हमारा बेसिकली इसमें अब तक तरीकाकार रहा है वो ये है कि हम अगर मिनिस्टर्स को बुलाते हैं तो हम उनकी जो मिनिस्ट्री है उनके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, उनके आगे के रोड मैप पे बात करते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट इमर्जिंग इश्यूज, डिफरेंट नेशनल इश्यूज, गवर्नमेंट के इश्यूज पे बात करते हैं. और हमारा एक रूल ये है कि हम ब्लेम गेम पे बिलीव नहीं करते, हम मिर्च मसाले पे बिलीव नहीं करते. वी डोंट वांट कि ये टिपिकल एक मीडिया डायलॉग हो, बल्कि एक इंफॉर्मेटिव सेशन हो जिसमें हम एक कैंडिड गुफ्तगू करें. और अगर किसी भी जवाब से मैं खुद मुत्तफिक नहीं हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस पे काउंटर आर्गुमेंट्स ना करूं. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज. और हमारा जो बेसिकली फेसबुक का पेज है नटशल फॉर द कॉन्फ्रेंसेस का, उस पर ये लाइव जाता है. अभी तक जो हमारी एवरेज अटेंडेंस है वो 60,000 प्लस पर एपिसोड है, जो लास्ट 5 एडिशंस थे. और जूम पे हमारे बहुत कम लोग होते हैं. इसके बाद हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद हम इसको वायरल करते हैं. एक तरफ तो मैसेज में ये सर्कुलेट हो जाता है, इसको लोग देख रहे होते हैं, इस पे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आफ्टर द 5 एडिशंस हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. पाकिस्तान की जो नेशनल इंटेलिजेंसिया है, अराउंड कोई 3000 प्लस के करीब हमारा एक डाटा है जिसके साथ हम ये वीडियोस शेयर करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लीडर्स हैं, उसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आर्म फोर्सेस हैं, उसमें एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, उसमें टेक्नोलॉजी एनर्जी के लोग हैं. और अभी तक जो 5 सीरीज हमारी एडिशंस हुए हैं उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया है. आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, today's 6th conversation and the 20th webinar, we are hosting our very active corporate Pakistan group member, CPGN Dr. Shiri Mazari. She is the Federal Minister for Human Rights, and this is her second term as member National Assembly in the National Assembly of Pakistan. Earlier, she served as the MNA from 2013 to 2018 also. She is also the chairperson of the Parliamentary Committee on Appointment of Chief Election Commissioner and members of the Election Commission of Pakistan. She studied at the London School of Economics, and later she received her PhD in Political Science from Columbia University. Later she joined Quaid-e-Azam University as an associate professor and went on to head the university's Strategic Studies Department. In 2002, she became the head of the government-funded Institute of Strategic Studies, and in 2009, she became the editor of The Nation. She also served as the editor-in-chief and publisher of Pulse magazine. Shiri is author of Pakistan's Security and the Nuclear Option, and also the author of The Kargil Conflict 1999, Separating Fact from Fiction. My personal experience with her is, बल्कि मेरा ही क्या, हमारे जितने members corporate Pakistan group के हम ये समझते हैं कि she is one of the most vocal persons in the parliament, and she is one of the most sane voice in the parliament.
She always talk about the right issues, and she highlighted without any fear. She's a brave and courageous woman. Thanks to Shiri. Assalamu alaikum, and thanks to you for joining us for the 6th edition. श्री, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वालेकुम सलाम। आई थिंक यू ओवरडन द कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल में बहुत लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होता, तो हम चूंकि लार्जर ऑडियंस पे जाते हैं तो टीवी टॉक शोज पे तो इतना लंबा बैकग्राउंड नहीं आता, बट हम इसको मीटिंग स्टाइल में कंडक्ट करते हैं, और दैट्स व्हाई आई शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके अलावा भी बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इस वक्त हाईलाइट नहीं की टाइम लिमिटेशन की वजह से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इसका डिस्कशन का, और जो पहला सवाल है हमारा वो आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, और पाकिस्तान में इस वक्त इस मिनिस्ट्री को आप हेड कर रही हैं। तो लास्ट 2 इयर्स में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो कौन से लॉज हैं जो आपने इम्प्लीमेंट किए या आपने इंट्रोड्यूस किए, और आगे आने वाली 3 इयर्स में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की का क्या रोड मैप, क्या आपकी स्ट्रेटजी है? ओके, हमें आपने पूरे कम से कम 1 घंटे का डिस्कोर्स तो इस सवाल में पूछ लिया है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री एक हैपहैज़र्ड तरीके से सेपरेट हुई थी। ये पहले सोशल वेलफेयर का हिस्सा था, फिर लॉ एंड जस्टिस का हिस्सा रहा, और 2015 के एंड में जाके ये एक अलहदा मिनिस्ट्री बनी। लेकिन इसकी ना फंडिंग ज्यादा थी, ना कोई इसको पावर दिए गए थे फ्रैंकली, और क्या कहते कानून साजी, प्राइवेट मेंबर बिल्स इन्होंने असिस्ट किए मिनिस्ट्री ने, और काफी इम्पोर्टेंट बिल्स किए। लेकिन जब मैं आई इस मिनिस्ट्री में, और मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रैंकली व्हेन आई वाज टोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर कि पॉसिबल नहीं होगा कि आपका जो मेरा जो स्पेसिफिक इशू एरिया है फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस, उसमें वी कांट अकोमोडेट यू, और उन्होंने वजूहात बताए। आई डिसएग्रीड विद देम, बट एनी हाउ, तो उन्होंने कहा कि तुम पार्लियामेंट्री अफेयर्स संभाल लो, तुमने पिछले असेंबली में 5 साल चीफ व्हिप का काम बहुत इफेक्टिवली किया था, पार्टी को डिफेंड भी किया था। मैंने कहा जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कोई इनिशिएटिव नहीं है, अगर आपने मुझे फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस में नहीं देना तो आप मुझको ह्यूमन राइट्स दे दें। मैंने इस वजह से ये मिनिस्ट्री खास मांगी थी क्योंकि मुझे पता था इस मिनिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, स्पेशली क्योंकि आई वाज ऑलरेडी अवेयर एक तो जीएसपी प्लस का, कि जीएसपी प्लस में ईयू ने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को टेकअप किया है विद पाकिस्तान, और हमने 7 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस भी साइन की हुई हैं। तो उस तरीके से मेरा काम ऑलरेडी हुआ था, और आई एम फेमिलियर विद द फील्ड। मैं ऑलरेडी क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, इन चीजों में काम 30-40 साल से कर रही थी, तो मुझे एक फेमिलियरिटी थी इस एरिया की। और दूसरा, क्योंकि बहुत अरसों से कोई ह्यूमन राइट्स इश्यूज में मैं काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। वैफ में भी हम आई वाज, जब सेटअप हुई है वैफ ज़िया के जमाने में, उस वक्त मैं वैफ की मेंबर थी। फिर इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस पर आमना जंजुआ साहिबा के साथ मैंने बहुत से प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट किया था। मेरी एक बहुत कमिटमेंट है कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो ये सारी वजूहात थी कि आस्क फॉर इट, और प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, ही सेड बिल्कुल तुम ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ले लो। बहरहाल जब मैं आई मिनिस्ट्री में तो मैंने देखा कि ना इनके पास फंडिंग है ना कुछ और, बट आई हैव अ वेरी एफिशिएंट एंड अ वेरी डेडिकेटेड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री। तो हमने बैठ के इसका एजेंडा बनाया। हमने कहा 3 चीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमने फोकस करना है। सबसे पहले हमने कवानीन देखने, लेजिस्लेशन, फिर हमने देखना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, और तीसरा हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, और खवातीन को पता नहीं उनके इनहेरिटेंस राइट्स हैं क्या, हालांकि हमारे कवानीन में हैं वो राइट्स। तो किस, और चाइल्ड अब्यूज को हम कैसे, ये कई टबू सब्जेक्ट्स थे, लोग बात नहीं करते चाइल्ड अब्यूज पे, या करते नहीं थे।
घरों में होता है चाइल्ड अब्यूज, लेकिन बात नहीं करते थे। तो हमने कहा कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमने पहले सबसे देखा जो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी ओनरशिप नहीं ले रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, उनमें से ट्रांसजेंडर का कानून था, विच बाय द वे मैं बताती चलूं, पाकिस्तान का मोस्ट प्रोग्रेसिव ट्रांसजेंडर लॉ है पूरी दुनिया में। लेकिन उसकी पास हो गया, लेकिन उसकी कोई मिनिस्ट्री ओनरशिप नहीं ले रही थी। तो वो हमने उसकी ओनरशिप ली और अब हमने एम्प्लॉय भी किया अपने मिनिस्ट्री में, और लोग जगहों पे भी एम्प्लॉयमेंट पुश कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद के हद तक पिम्स में एक वार्ड स्पेशल बनाया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले हेल्थ कार्ड ट्रांसजेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। हमने पुलिस के साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया है ट्रांसजेंडर्स पे, और अब हमें फंडिंग मिल गई है और हम अब उसके लिए ट्रांसजेंडर सेंटर भी बना रहे हैं जिधर वो आ सके अगर कोई प्रॉब्लम हो या हेल्प हो चाहिए हो या कुछ। तो ट्रांसजेंडर का कानून पहला कानून जो हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। दूसरा एक बहुत अरसे से था नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, लेकिन कोई बना नहीं रहा था। हमने एडवर्टाइज किया, अब अल्लाह के फजल से वो नेशनल कमीशन ऑन द चाइल्ड एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। उनको फंडिंग अब हमने दिलवा दी है फाइनेंस से, एंड उनको ऑफिस भी अब वो ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। अभी वो उनको हमने एकोमोडेट किया हुआ है, हमारे पास कुछ स्पेस थी हमारे पुराने ऑफिस में जो हमने हैंड ओवर नहीं की थी वापस, तो वो भी शुरू हो गया है। उसके अलावा हमने क्या कहते जो अनफॉर्चुनेटली हमारा बिल अभी तक फंस गया सियासत के उधर, पीपल विद डिसेबिलिटीज का हर जगह से पास हो गया था, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने टाइम से नहीं पास किया, वो डेज गुजर गए। अब जॉइंट सेशन में उम्मीद रखते हैं वो आ तो गया उनके एजेंडा पे, अब जो जॉइंट सेशन होगा होपफुली हम उम्मीद रखते हैं ये बिल भी पास हो जाएगा। ये पिछली हुकूमत ने कोशिश की थी और अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं पास कर सके इस बिल को, मुझे नहीं समझ आती क्यों। हमने उस बिल को रिफाइन और मॉडिफाई करके बेहतर कर दिया है और उम्मीद रखते हैं पास हो जाएगा। फिर आपको पता है वो ज़ैनब अलर्ट बिल एक था, वो कानून मुश्किल से हमने पुश करके वो हमने पास करवा दिया है। अब ज़ैनब अलर्ट कानून बन गया है। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री और इन सब जगहों को लिखा है कि फंडिंग दें, उनको स्पेस चाहिए होगी, ज़ारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसी करेगी। तो मैं आपको ये बताती चलूं, अगर आपको अभी तक नहीं एहसास हुआ कि कानून बनाना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें नजर आया है और जो पहली दफा मैंने देखा है कितना ज्यादा ये मसला है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स का। आपको अभी मैं बाद में बताऊंगी जो हमने डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर को प्रोस्क्राइब किया है 1991 के चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट में, उसका स्केड्यूल 1 में डाला है, जिसके लिए कानून नहीं चाहिए था, एक गजेट नोटिफिकेशन चाहिए थी। कैबिनेट ने अप्रूव कर ली डिसीजन, 3 हफ्ते लगे लड़ झगड़ के सेनेट की फंक्शनल ह्यूमन राइट्स कमेटी को यूज करके कि ब्यूरोक्रेसी इसको नोटिफाई कर दे, क्योंकि ये इंटीरियर ने करना था। इंटीरियर ने कहा आपने ये कैबिनेट से अप्रूव करवाया, आप खुद कर लें। कैबिनेट ने कहा आपका डोमेन नहीं है, आप कैसे गजेट नोटिफिकेशन करवा सकते हैं। इवेंचुअली जब बहुत प्रेशर पड़ा उनको और जब झगड़ा फसाद इतना हो गया कि दे सेड अच्छा जी आप कर लें। फिर हमने लॉ मिनिस्ट्री को भेजना पड़ता है, उधर से वेट होता है, उधर से वेट करवाया। फिर लिटरली मैंने अपने डीजी को कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को कहो एक दिन में ये निकाले, बहुत देर हो गई है। तो ये भी हमने एक अचीवमेंट लड़ झगड़ की है कि पहली दफा पाकिस्तान में चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, यानी कि कोई शख्स अपने घर में 14 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची को नहीं एम्प्लॉय कर सकता, इलीगल है। ये इस्लामाबाद टेरिटरी तक महदूद है क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट, बट हर प्रोविंस जो भी प्रोविंस चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज है, उसके तहत रेजोल्यूशन अपनी असेंबली से पास कर ले कि ये कानून वो एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे कैन इम्प्लीमेंट इट।
तो ये भी एक मैं समझती हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक लेबर और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे कोई फोकस नहीं था। इसके अलावा आते ही मैं सबसे पहले हमने सब स्टेक होल्डर्स को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो इन्वॉल्व है, उनको साथ मीटिंग करके हमने एक बिल बना हुआ है इनफोर्स डिसअपियरेंसेस का, जिधर हम पीपीसी में क्रिमिनलाइज करना चाहते थे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान ने जीएसपी प्लस एक्सेप्ट किया है और उसमें जो 7 ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस है, आईसीसीपीआर में इनफोर्स डिसअपियरेंसेस का इशू है, और हमें ये बार बार कन्फ्रंट यूरोपियंस करते हैं। तो ये हमारी अब एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी बन गई है, अपार्ट फ्रॉम हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो हमने वो बिल तैयार कर दिया, सबने कहा कि हाँ आप क्रिमिनलाइज कर दें इसको। जब बिल सारा तैयार हो गया तो लॉ मिनिस्ट्री में फिर कई स्टेक होल्डर्स को सेकंड थॉट्स हुई, वो अब लॉ मिनिस्ट्री में 2 साल हो गए वहां बैठा हुआ है। हमने कॉर्पोरल पनिशमेंट जो का बिल, पीएम ने 2-3 दफा कहा कि बिल्कुल सही है, इसको अप्रूव करें, बच्चों का ये कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अनएक्सेप्टेबल। आप अंदाजा लगाएं, बिल पूरा सीसीएलसी जो कैबिनेट की लॉ कमेटी है, लॉ मिनिस्ट्री ने कर दिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री में वो बैठा हुआ है और 1.5 साल हो गया है। और अफसोस की बात यह है कि मीनवाइल प्राइवेट मेंबर ऑपोजिशन ने बिल ये सारा कमेटी से भी थ्रू करवा लिया सारा कुछ, और अब ये सेनेट में उनका बिल चला जाएगा। और हमने जो मेहनत इतनी की थी, बल्कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को अगले दिन कैबिनेट में कहा था कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लेजिस्लेशन पे मूव करते हैं थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, मे बी हम अपने कवानीन प्राइवेट मेंबर्स को दे दें तो जल्द पास हो जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है जिसे हम तो कोशिश कर रहे हैं लड़के निकले, रिफॉर्म्स लाएं गवर्नेंस में। बहरहाल फिर हमारा एंटी टॉर्चर बिल है। हमारा एंटी टॉर्चर बिल भी जीएसपी प्लस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने वो ड्राफ्ट किया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं उसको। वो एंटी टॉर्चर बिल भी इंटीरियर मिनिस्ट्री में, क्योंकि उनका डोमेन आता है, तो कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी थी, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास बैठा हुआ है। मीनवाइल सेनेटर शेरी रहमान का टॉर्चर बिल सेनेट से अप्रूव हो गया है, वो नेशनल असेंबली में आएगा। और मैं तो नहीं खड़े होके कहूंगी कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। कैसे पीटीआई की गवर्नमेंट कह सकती है खड़े होके कि वो टॉर्चर के को अप्रूव कर रही है और एंटी टॉर्चर नहीं एक्सेप्ट कर रही। तो ये हमारे लिए एक और प्रॉब्लम अब बन गया, थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। बहरहाल हमने फिर एक और बड़ा प्रोग्रेसिव बिल तैयार किया है, जिसमें हमने जर्नलिस्ट को कंसल्ट किया था, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल। बल्कि सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने उसकी तारीफ की पब्लिकली, एडिटोरियल भी डॉन ने लिखा। वो बिल पहले फिरदौस आशिक अवान ने सैबोटाज करने की कोशिश की, वो बच गया, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, इंटीरियर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ये पुराना बिल है, ये ले लें। तो पीएम ने कहा कि लॉ मिनिस्टर को क्या आप दोनों को बिठा दें और आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल बना लें। वो दिन, आज का दिन हम इंतजार कर रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री की कि खुदा के वास्ते, जर्नलिस्ट बार बार पूछ रहे हैं क्या हुआ उस बिल का। लेकिन अब शिबली फराज साहब आ गए, उनसे मेरी बात हो गई है, सो होपफुली वो बिल भी चला जाएगा। हमारा सीनियर सिटीजन्स बिल ह्यूमन राइट्स कमेटी असेंबली की है, वहां चला गया है। हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का बिल भी असेंबली ने ह्यूमन राइट्स कमेटी को पेश कर दिया है। तो आपको अंदाजा होगा हमने काफी लेजिस्लेशन की है, कुछ फंसी हुई है, कुछ कमिटीज में है, बट उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ निकलता आएगा। दिस इज अ स्लो प्रोसेस एज आई हैव डिस्कवर्ड, बट हम कोशिश करते रहेंगे। तो ये तो हो गया लेजिस्लेशन का, जो एग्जिस्टिंग थी उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पे मैं और कुछ ये कहूंगी कि चाइल्ड अब्यूज पे, विमेन इनहेरिटेंस पे हम बहुत सा अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत कर रहे हैं। अब मैं खुद इस्लामाबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स में कोविड से पहले मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, 6-7 स्कूल्स में गई भी थी खुद, जिधर हम बच्चों के लिए चाइल्ड अब्यूज की वीडियोस दिखाते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स को हम इनवाइट करके उनको एजुकेट करते हैं। और हमने अब ये इस्लामाबाद में डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रुप्स बनाए, लोकल हाउसवाइफ्स के, ट्रेडर्स के,
मसाजिद के लोग कि आप यहाँ ग्रुप अपना बनाएं और अपने इलाके में हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, आप ये वायस लोगों को पहुंचाए पैगाम और आप ऑब्जर्व करें कि किधर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। हमें एक एनजीओ के साथ एग्रीमेंट अब किया है, उनके पास फंड्स आ गए। हम एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बिल्डिंग हमारे पास है, लेकिन वो इतनी टूटी फूटी है, उसको रेनोवेट कर रहे हैं ताकि ये हम एक परमानेंट चाइल्ड शेल्टर भी बना सकें। अभी हमारे पास एक है, बट हम रात को नहीं रख सकते बिकॉज वी डोंट हैव द फैसिलिटीज, बट वी कीप देम इन द डे टाइम, हम एजुकेट भी करते हैं उनको, बट रात को वी हैव टू लीव देम। ये दीज आर द चिल्ड्रन जो पुलिस उठाती है बेगिंग से, हमारे पास वो ले आते हैं, लेकिन फायदा क्या जब रात को वापस चले जाए। सो वी आर होपिंग कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर हमारा पूरा बन जाए। हमारा एक विमेन शेल्टर है बेनजीर शेल्टर जो बहुत अरसे से है, और वहाँ अभी तक इट्स अ वेरी इफेक्टिव शेल्टर। उधर खवातीन कोई कोर्ट भेजती हैं, कोई भाग के आती हैं, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनकी आइडेंटिटी सेफ है, और वो अभी तक हम मेंटेन कर रहे हैं, और इट्स अ वेरी यूजफुल शेल्टर, जिधर स्टैंडर्ड भी सही है। इंटरनेशनल एनजीओज ने भी आके देखा है, यूएन विमेन उसको सपोर्ट करती है वो थोड़ा बहुत, और उन्होंने भी दे कीप इंस्पेक्टिंग। तो मतलब है काम काफी स्टेजेस पे हो रहा है। दो चीजें और जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं समझती हूँ कि एक हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी प्रिजन रिफॉर्म्स पे, विच आई वाज हेडिंग। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पूरी रिपोर्ट्स दे दी हैं। हमने नेल्सन वो मंडेला रूल्स लिए हैं विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर प्रिजन्स, और बैंकॉक रूल्स जो खवातीन प्रिजनर्स के हवाले से हैं, और उस हिसाब से हमने गैप एनालिसिस किया है। हमने सारा डेटा प्रोविंसेस वो पार्ट ऑफ दिस कमिटी हमने दिया है कि क्या किस प्रोविंस में किधर क्या शॉर्टेजेस हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या चीजें करनी है। तो ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने पूरी रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक विमेन प्रिजनर्स के लिए जब कोविड शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें विमेन प्रिजनर्स पे स्पेसिफिकली। इंशाल्लाह वो रिपोर्ट भी इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी। हमने वहां भी गैप एनालिसिस किया है विद द बैंकॉक रूल्स, और हमने प्रोविंसेस आई मस्ट से ऑलवेज हेल्प्ड अस, हमारी मिनिस्ट्री में नहीं, हमें इंटर प्रोविंशियल इश्यूज नहीं हुए, एंड सारे प्रोविंसेस से और जीबी से और एजेके से हमें डेटा आ गया है। वो हम अब सारा एनालिसिस कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक हम प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट कर देंगे। उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया था, हम 1 महीना पहले उनको खत्म करके दे देंगे, क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे बहुत बुरे हालात हैं, मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स वी डिस्कवर्ड अंडर ट्रायल है, नॉट दोज हु हैव बीन सेंटेंस्ड। तो इसका हल ढूंढना पड़ेगा, बट क्योंकि डेटा अब आ जाएगा तो बेहतर होगा। और डेटा बेसिस हम डेवलप कर रहे हैं। हमने 15 साल के बाद यूनिसेफ के साथ मिलके चाइल्ड लेबर सर्वे शुरू की है, जो कि जून में खत्म होनी थी, कोविड की वजह से कुछ महीने डिले हो गई है। तो वो सर्वे जब आएगी तो वील हैव अ प्रॉपर डेटाबेस ऑन विच टू मेक पॉलिसी डिसीजंस। और अब हम ह्यूमन राइट्स की एक डेटाबेस भी ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर जो जिनीवा में है उनके साथ मिलके ये इनकी डेटाबेस ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान के लिए एस्टैब्लिश करें। 2 वर्कशॉप्स हो चुके हैं, और इंशाल्लाह दिस शुड बी स्टार्टिंग वेरी सून एज वेल। देयर होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स मैं अगर बताती गई, बट मेन हमारा यही फोकस है, अवेयरनेस, लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ legislation, and then of course हमारा एक big chunk is our helpline, और हमारी helpline deals with across the provinces. It's not just Pakistan, it's not just Islamabad oriented, और अब हम उसमें और फीचर्स ऐड कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं कि कई खवातीन जो घर में बंद हो, जो बात ना कर सके, if they ring up they can just press a number and we will know where they are and what help they need. तो ये चीजें हम अपनी हेल्पलाइन इंप्रूव कर रहे हैं। हेल्पलाइन इज अ मेजर प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। Okay.
जो ह्यूमन राइट्स है, आपका प्रेस फ्रीडम है, रिलीजियस इंडिपेंडेंस है, इसमें हमारी ओवरऑल रैंकिंग है वो मुसलसल नीचे हो रही है। और ये कि हम इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हमारी रैंकिंग ऊपर क्यों नहीं जा रही तमाम तर रिफॉर्म्स के बाद। और इसी से मेरा एक और सवाल ये है कि जो ट्रांसजेंडर की आपने बात की, इसके अलावा जो यहाँ पे खास तौर पे जो पुअर गर्ल्स के साथ जो रेप के केसेस होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल माफियाज उसके पीछे काम कर रहे हैं, उस हवाले से जो है वो आपकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई चीजें ऐसी हैं विच आर ह्यूमन राइट्स इश्यूज, बट वो हमारी मिनिस्ट्री की डोमेन में नहीं आती। और अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ देम इज इश्यूज रिलेटिंग टू रिलीजन। आई स्टिल फील कि हमें रिलीजियस अफेयर्स को इंटरफेथ हार्मनी से अलहदा करना चाहिए। मैंने तो ये पेश भी किया था कैबिनेट में, नोबडी एग्रीड विद इट। लेकिन ये रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री में आती है और मैं समझती हूँ कि रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री बहुत स्लो मूव करती है। कई इश्यूज जो हैं स्पेशली माइनॉरिटीज के हवाले से, मैंने शफकत महमूद साहब को फॉर एग्जांपल कहा था कि अगर आप सिलेबस करिकुलम सारा एक कर रहे हैं, और वो अब काफी उस पर मैं समझती हूँ डिबेट होना चाहिए उस करिकुलम पे, तो आप जब इस्लामियात दे रहे हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स को, तो व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, क्रिश्चियंस एंड हिंदूज एक्सेट्रा, के उनको अपना रिलीजन पढ़ने दें। एक एथिक्स की टेक्स्ट होता है, और वो मेरे पास आए थे क्रिश्चियन एंड हिंदू डेलीगेशंस। जैसे जी एथिक्स की किताब देखें, ये हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, क्रिश्चियंस को डिफेम, क्रिश्चियंस को डिनाइग्रेट कर रहे हैं, ये नहीं हमें एक्सेप्टेबल। मैंने वो किताबें विद मार्किंग्स भी दे दी थी, और ये 2 साल की कहानी है फिर शफकत महमूद साहब को, और आई होप ही विल नोट इट। बट इशू ये है कि आप उनको क्यों नहीं उनका रिलीजन पढ़ने देते, एथिक्स क्यों उनको सिखा रहे हैं? यू शुड टीच, लेट देम टीच, दे सेड हम टीचर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो वी हैव टू चेंज द वे जिस तरीके से हम अपनी माइनॉरिटीज को अप्रोच करते हैं। माइनॉरिटी इश्यूज को हम मेन स्ट्रीम नहीं करते, हम साइडलाइन करके बिल्कुल अलहदा से करते हैं। दे आर इक्वल सिटीजन्स इस मुल्क के, तो फिर आप उनके इश्यूज मेन स्ट्रीम में लाएं। अनफॉर्चुनेटली हम इस पे हमारे पास स्पेस नहीं है हमारी मिनिस्ट्री की टू डील विद इट। हालांकि दिस इज पार्ट ऑफ द 7 ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस, और हम यही रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। कई सेंसिटिव कंट्रोवर्सीज हुई हैं, हमें डेथ थ्रेट्स भी आई हैं क्योंकि हमने राइटिंग में अपनी ओपिनियन दिया था। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग कहते हैं जी आप लोग क्यों नहीं करते, रेप हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, क्या आप काम कर रहे हैं? मेरा सवाल है कि हम कानून तो उसी वक्त एक्शन में आता है जब क्राइम हो जाए, जुर्म हो जाए। तो आपने लोगों की जहनियत बदलनी है, इसी वास्ते हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लेकिन कौम को खुद भी कुछ करना चाहिए। अपने घरों में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने मोहल्ले में देखें कि किस किस्म की जहनियत है। अब आप जब वो वीडियोस देखते हैं जिधर बच्चों को मार पिट रही है, और जिधर क्या कहते हैं जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं बच्चियों के साथ, और लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप देखें किस किस्म की जहनियत है जो ये जराइम करती है और साथ वीडियोस भी बनाती है। ये सारा मसला जो है, ये सिर्फ कवानीन से और हुकूमत नहीं हल कर सकती। हम एजुकेशन कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने खुद भी एक्शन लेना है, लोगों ने अपनी जहनियत बदलनी है। हमने अपने असातिज़ा को ट्रेन करना है कि वो बच्चों को, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करें, क्लासेस हफ्ते में 1 दफा मीटिंग्स करें। हमारे आपको पता है जो बड़े एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स हैं उधर पीटीएस नहीं है जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में पीटीएस होती हैं। और जब आप उनसे पूछे कि आपके पीटीए क्यों नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, कि नहीं जी पीटीए का कोई फायदा नहीं। तो मतलब है हमने अपना अप्रोच बदलना है जिस तरीके से हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स को। और बहुत अरसे से पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंसानी हकूक को हम देखते थे एक सोशल
वेलफेयर के मिरर से कि गरीब लोग हैं, इनकी इमदाद कर दो, इनको भूखा ना रहने दो, वो सब सही है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री अप्रोच अब फर्क लेती है। हम राइट्स बेस्ड अप्रोच लेते हैं। हम जब लोगों के साथ बात करते हैं, चाहे बच्चे हों अवेयरनेस प्रोग्राम में या पेरेंट्स हो या साथी हो, हम कहते हैं ये आपके हकूक हैं, हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, हम आपके ये हकूक हैं जिनका आपका हक बनता है, आप ये चीजें रियासत से मांगे, हुकूमत से मांगे, ये आपका हक है। तो वी वांट टू हैव अ राइट्स बेस्ड अप्रोच। इससे कंट्रोवर्सीज होती हैं, हो पड़े, हमने करना है जो सही काम है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को बेहतर करेगा और मुल्क को बेहतर करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, रेप हो रहा है, औरतों को उनकी इनहेरिटेंस नहीं दी जाती, औरतों के साथ जुर्म होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा होता है, ये सारी चीजें हो रही हैं। कानून है, कानून लागू भी आप कर दें, ये खत्म नहीं होंगी जब तक लोगों की ज़हनियत नहीं बदली जाएगी। श्री, आपने बात की रिलीजियस इंडिपेंडेंस की, तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो सिख हमारी कम्युनिटी है उसके लिए हम करतारपुर ओवरनाइट डेवलप कर देते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कि वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और उसको बहुत टाइमली आपने किया, उसके स्ट्रेटेजिक आपके व्यूज भी थे। आई हैड अ पर्सनल डिस्कशन विद प्राइम मिनिस्टर आल्सो, विद मिलिट्री लीडरशिप आल्सो। आज हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में तमाम तर कोशिश के बावजूद हिंदू बिरादरी के लिए एक मंदिर की तामीर भी मुकम्मल नहीं करा पा रही। इस पे आपकी क्या राय है? ये क्यों ऐसा तजाद पेश आ रहा है एज ए स्टेट? ये इस वास्ते आ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल्स कोर्ट में चले गए, स्टे ऑर्डर्स ले लिए हैं। आपकी जो कई रिलीजियस लॉबीज हैं, उन्होंने ये रिलीजन का इशू बना लिया है। हालांकि कि टैक्स पेयर का पैसा तो टैक्स तो सारे देते हैं, सिर्फ मुसलमान तो टैक्स नहीं देते। तो पॉइंट ये है कि जब आप कोर्ट में चले जाते हैं तो हर चीज स्टे ऑर्डर जब आता है तो एवरीथिंग इज एट अ स्टैंड स्टिल। अब ये केस रिजॉल्व होना है और मैं समझती हूँ कि मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए, क्या हर्ज है। अगर आप करतारपुर बना सकते हैं तो इस्लामाबाद में, जो कि आपका कैपिटल है, एक प्रॉपर मंदिर क्यों नहीं बना सकते? पूरी दुनिया को आप दिखाएं कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो टॉलरेंस का है, वो एक्सेप्टेंस का है। हमें क्यों इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है? और अगर आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का विजन देखें, जब तक हम उस विजन पे वापस नहीं जाएंगे, जब तक हम ये ज़ियाउल हक के जो काले कवानीन थे और जो एक पूरा माइंडसेट जो अभी तक हम पे हावी हुआ है वो नहीं हटाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते और हम वो जिन्ना का विजन नहीं पूरा कर सकते। और मैं समझती हूँ गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा वही होना चाहिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज नहीं आ रही कोई। Yes, your voice is clear. Your voice is clear. Okay, I wasn't hearing आप बोलें anything. प्लीज। ओके, Can you आपकी hear me आवाज now? क्लियर। अच्छा, ओके। मैं ये यस भी यस कहना यस। चाहूंगी कि हमें बहुत से जो और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनली भी हमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है, वो ऑफ कोर्स है क्या कहते हैं हमारे मीडिया फ्रीडम्स का और मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस या जर्नलिस्ट के साथ जो तशद्दुद होता है। और मैं समझती हूँ बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अगर किसी ने एंटी स्टेट एक्टिविटी की है या सस्पेक्टेड है, आप उसको कोर्ट में पेश करें, चार्ज करें और कोर्ट केस करें। एग्जैक्टली, दिस इज द लेकिन लीगल वे। यस। जी, सॉरी, बीच में कुछ कोई बोल रहा था, आई डोंट नो, एनी हाउ। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि योर किसी को, वॉइस इज क्लियर, योर वॉइस इज क्लियर, आप बोलते हैं। आप ये नहीं किसी के साथ कर सकते कि आर्बिट्रेरली किसी को घर से उठा लें,
रात के अंधेरों में या दोपहर को या जब भी, और वो गायब हो जाए शख्स और पता ही ना चले, ये मुल्क के लिए नुकसान है। अब कई ऐसे केसेस हैं जो बार बार यूएन हमें खत लिखती है जर्नलिस्ट के लिए। इस वास्ते मैं समझती हूँ जो हमने बिल बनाया है जिसमें जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन भी है और उनके करियर की सिक्योरिटी भी है, वो बिल जितना जल्दी हम आगे लेके चलेंगे उतना बेहतर होगा। तो ये एक कुछ इश्यूज है और ये बड़े सीरियस इश्यूज है जिसपे एक कंसर्टेड एफर्ट हमें हमारी हुकूमत को करना होगा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी, बिल्कुल इकोनॉमी पे फोकस इम्पोर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, बट अब फॉरेन पॉलिसी इज नॉट जस्ट कि जी आप स्टेट टू स्टेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस करें। फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा ह्यूमन राइट्स का हो गया है, बिकॉज कई इंपॉर्टेंट ममालिक में ह्यूमन राइट्स सेंट्रल हो गया है। और अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और हमने कश्मीर में जो अब्यूज हिंदुस्तान कर रहा है वो इफेक्टिवली आगे लेके हम जाएंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं हम उसमें बिलीव करते हैं और हमारे मुल्क में हालात फर्क हैं, ये भी हमने दिखाना होगा। और बहुत फर्क है हिंदुस्तान के हालात और हमारे। उधर एक फैशिज्म का वेव आया हुआ है, उधर जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नरेंद्र मोदी कर रहा है वो एक अजीबो गरीब एक नाज़ीइज्म का रिप्ले हो रहा है और दुनिया चुप है। हमने दुनिया को जाके बताना है, लेकिन हम इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे। प्राइम मिनिस्टर ने एक इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया था, पहली दफा कश्मीर का नैरेटिव पाकिस्तान का जो था कि नरेंद्र मोदी और फैशिज्म और नाज़ीइज्म एक है, वो पहली दफा चला है दुनिया में और हिंदुस्तान का नैरेटिव खत्म हो गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी तो चाहिए जो ये मैसेज आगे लेके जाए इंटरनेशनल फोरम्स पे। उधर अनफॉर्चुनेटली हमने प्राइम मिनिस्टर को हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने वो सपोर्ट नहीं दी जितनी हम दे सकते थे और अब भी देनी चाहिए। You are actually known as for your candid views, and I want your candid view on one important topic. कि जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है, जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है उसको जो पॉलिटिकल आपकी प्लानिंग होती है, जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, उसमें आप लोग कितने इंडिपेंडेंट हैं और क्या कोई बैरियर्स आपके लिए हैं, कोई ऐसे आपके लिए हर्डल्स हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मजबूर होती है दूसरी तरफ डिसीजन लेने के लिए? इस पे मुझे आपका कैंडिड व्यू चाहिए। प्लीज अनम्यूट योर वॉइस, अनम्यूट योर वॉइस। सिविलियन गवर्नमेंट दुनिया में जहां भी होती है इट हैज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी स्पेस देंगे और वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो अदर वैक्यूम्स विल ऑलवेज बी फिल्ड अप। मैं आपको साफ साफ बताऊं, हुकूमत में ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होते हैं, इंटर मिनिस्टीरियल क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एंड यू हैव टू रिजॉल्व दम। मैं नथिंग इज स्मूथ सेलिंग, बट मैं समझती हूँ कि आप अपने आप को असर्ट करें। इट्स लाइक यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, विद इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है। आपको पता है अमेरिका में there's a whole discipline. I studied one course of it during my PhD coursework, bureaucratic politics. मुझे कभी उस वक्त तो मैंने एज एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ा था, आई नेवर रियलाइज कितना ये एप्लीकेबल है इन एनी गवर्नमेंट, क्योंकि उससे कई चीजें अब मुझे समझ आ रही हैं क्यों वो कहते थे। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होते हैं एंड देयर आर सिविलियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड दे हैव टू बी ब्रॉट इन टुगेदर। लेकिन सिविलियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में जो इट हैज टू बी सुप्रीम, और विजन हमेशा सिविलियंस का ओवरऑल होता है, इट्स अ वाइडर विजन। उसमें आप
डिसिप्लिन या और चीजें नॉन सिविलियन सोर्सेस से ले सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉड विजन होता है दैट इज ऑलवेज जनरेटेड बाय अ पॉलिटिकल सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखती है, वो गवर्नमेंट की भी देखती है, वो पॉलिटिकल नीड्स भी देखती है कि पॉलिटिकली क्या चीज ऑपर्चून है, क्या पॉलिटिकल कॉस्ट होगा, और हर चीज का आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स और ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर चीज का होगा, इन सोशल इश्यूज का भी होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट्स बेस्ड इश्यूज का भी होता है, हर चीज में देयर इज अ कॉस्ट एंड अ बेनिफिट, नथिंग इज फ्री और विदाउट कॉस्ट। तो आपको ये वे करना होता है, एट द एंड ऑफ द डे कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर have to make the final decisions what they think is right or what they think should be done, but उससे पहले डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए। जो फैसले डिबेट और डिस्कशन, एक्सटेंसिव डिबेट और डिस्कशन के साथ होते हैं, वो फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। और आपको मैं ये बताती चलूं, आई थिंक ये पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान में जो हर हफ्ते कैबिनेट होती है और 5-6 घंटे चलती है कैबिनेट, जिधर खुल के डिबेट और डिस्कशन होती है, और फिर एक कंसेंसस होता है, आप अग्री करें या ना अग्री करें, बट एक दफा कैबिनेट फैसला कर लेती है, देन यू हैव जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बेसिकली डुअल नेशनलिटी पे अपनी आवाज रेस की, आपने क्रिटिसाइज किया उन एडवाइजर्स को, उन एसपीएम्स को जो इनकी डुअल नेशनलिटी है, उसका आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू पहले से ये था, जब मैं पार्टी में आई थी उस वक्त भी बड़ा डिबेट हुआ था। आई हैव माय ओन व्यूज। मैं समझती हूँ कि ड्यूल नेशनल्स जो सियासत में आना चाहते हैं, उनको इलेक्शंस में उनको अपनी नेशनैलिटी गिव अप करनी चाहिए ड्यूल, क्योंकि स्पेशली जो अमेरिकन ओथ अगर आप पढ़ें, वो जिस तरह लॉयल्टी का ओथ होता है, उससे फिर आप पाकिस्तान की लॉयल्टी कैसे कर सकते हैं? यू कैन बी लॉयल टू बोथ। तो मैं समझती हूँ दिस इज अ प्राइस दैट पीपल शुड पे। और मैं समझती हूँ यस, ओवरसीज पाकिस्तानीज और ड्यूल नेशनल्स बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जो लोग अपने ऑप्शंस नहीं एक्सरसाइज करते व्हेन दे हैव अ चांस टू वर्क अब्रॉड, बट वो पाकिस्तान पहले ही आते हैं टू सर्व, दे आल्सो हैव अ राइट to have the same facilities that overseas Pakistanis do. आपको पता है हिंदुस्तान तो अलाउ नहीं करती ड्यूल नेशनैलिटी, but yet people of Indian origin उतने ही loyal हैं to India even without having Indian nationality if they are American nationals or they're British nationals. तो ये कहना कि नहीं हमें क्या कहते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए ड्यूल नेशनल्स का, तो इस वास्ते वी मस्ट मेक ऑल पॉलिटिकल कंसेशंस। I have a differing view, हालांकि my own brother is a dual national, but so what, हमारा ये डिबेट उसके साथ भी चला था, एंड माय नेफ्यू आई सेड अगर आपने सियासत में आना है प्लीज गिव अप योर कैनेडियन नेशनैलिटी और आप एक सियासत करें। और दूसरा, अगर आपने देखें कैबिनेट की मेंबरशिप का एक और इश्यू है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट साइन करते हैं, और वो क्या कहते हैं, खैर अब तो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हो गई है, और आपको पता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ड्यूल नेशनल नहीं होते। तो अगर आप कैबिनेट में सर्व कर रहे हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं यू हैव टू बी केयरफुल कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। बट ये मेरी व्यूज है, नॉट एवरीबडी इन द कैबिनेट एग्रीज विद इट, बट मैं अपनी माय व्यूज हैव बीन द सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं नहीं समझती कि मुझे बदलने की जरूरत है ये व्यूज। इस वक्त बट इसमें भी पाकिस्तान की सराउंडिंग्स में बहुत चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल हम चाइना इंडिया का स्टैंड ऑफ देखते हैं, उसके बाद हम चाइना ईरान की पार्टनरशिप देखते हैं, अफगानिस्तान से जो फौजों का इनखला होना है, फिर अभी जो लेबनान में जो सिलसिला हुआ है, हमारे जो सऊदीया के साथ सिलसिला चल रहा है, ऊपर से आपकी पाकिस्तान चाइना एंड देन फिर पाकिस्तान यूएस। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या व्यू है और आपका क्या फोरकास्ट है, क्या रिकमेंडेशंस हैं फॉर द फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में? क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखें, हमें एक तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया बदल गई है,
और पहली चीज जो बदली है कि यूएस इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें इजराइल भी हिस्सा है। तो अगर आप समझते हैं कि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो ये सब गलत फहमी है। तो अगर आप इस प्रेमिस से कहें कि अब एक दुनिया बदल गई है, दूसरी जो पुराना एक इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम था वो खत्म होता जा रहा है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने खत्म कर दिया है। यानी कि एक न्यू एज ऑफ यूनिलैटरलिज्म आ रही है, जिधर जो इंटरनेशनल कवानीन थे आर्म्स, खासतौर पे न्यूक्लियर रिलेटेड आर्म्स वगैरह के, वो सारे ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जा रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी पर्सन फॉर इटसेल्फ, एवरी स्टेट फॉर इटसेल्फ। दूसरा आप देखें जो अमेरिका ने क्वाड बनाया है, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और एक नया आर्टिफिशियल रीजनल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक। तो जिस तरीके से भी आप देखें ये एक नया इंसर्कलमेंट प्रोग्राम है। तो आपको वाजे तौर पे क्लियर होना चाहिए कि आपकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के साथ। उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आप किसी तरह नहीं अंडरमाइन कर सकते टू मेक कंसेशंस टू द यूएस। यूएस के साथ आपकी हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है। अगर आप हिस्ट्री भी देखें, जब अमेरिका को जरूरत होती है आपकी, नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर रीजन, फिर अमेरिका आपके साथ आता है। तो अमेरिका के साथ आपकी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। लेट्स बी वेरी क्लियर, चाइना के साथ आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब चाइना ईरान के साथ आ गया है, इंडिया को चाबहार से कुछ एक्सट्रिकेट किया है ईरान ने। अब ये लिंक अगर डेवलप होती है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान भी अब यूएस फोर्सेस, मेरा नहीं ख्याल वो टोटली विड्रॉ करेंगे, बेस अपनी रखेंगे अफगानिस्तान में। बहरहाल फिर टर्की आ जाता है, उधर देखें तो चांसेस वो पुराना जो एक था पाकिस्तान, ईरान, टर्की का, अब अगर चाइना भी उसमें आ जाता है, स्ट्रेटेजिकली पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। एंड दैट इज व्हाट वी शुड एक्सप्लोर इकोनॉमिकली और politically और strategically, what I call a community of interest based on a power of interest। मैंने इस पे पेपर भी लिखा था कुछ अर्सा पहले, उसको मैं अभी एक्सपैंड कर रही हूँ, बट आजकल जब से हमारी हुकूमत आई है, माय इनपुट्स आर नॉट देयर फॉर फॉरेन पॉलिसी, बट एनी हाउ मैं तो पब्लिश कर दूंगी। और दूसरा ईस्टर्न साइड पे भी चाइना, पाकिस्तान और चाइना के फार ईस्ट में जो एलाइज हैं, और मैं समझती हूँ मलेशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, इंडोनेशिया पे पोटेंशियल है, ये सारे लिंकेजेस आ रहे हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज है, अमेरिका करना चाह रहा है सी लेन्स को कॉन्कर। ये पुरानी स्पाइकमैन की, उनके स्ट्रेटजिस्ट की थी, कंट्रोलिंग द सी लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। एक मैकिंडर था थियरिस्ट जिसने कहा नहीं जी हार्टलैंड को आप कंट्रोल करें। हार्टलैंड थियरी अब चाइना वो कर रहे हैं। अगर आप देखें चाइना इज गोइंग, ये बेल्ट रोड हाईवे, ये इनका प्रोजेक्ट जो है उस ईस्टर्न साइड पे भी वो यही कर रहे हैं। तो आई थिंक के एक न्यू स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बन रही है जिसमें नई तरीकेकार होंगे। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी है, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, साइकिल साइऑप्स भी हैं, जो सारे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर अब जो कहलाती है। पहले कोल्ड वॉर के भी यही टैक्टिक्स होते थे, नाम नए होते जाते हैं, जंग के तरीके तकरीबन वो रहते हैं, वेपन सिस्टम्स बदल जाते हैं। बहरहाल ये नई सिक्योरिटी अलाइनमेंट्स जो है, ये अब हमने देखनी है किस तरह हमने इनमें जाना है क्योंकि जो पुराना तरीकेकार था वो अब नहीं चलेगा। और इसी तरह आप देखें यूएन में भी ये सारी पावर प्लेज आएंगी। आपको पता है अमेरिका ने इराक वॉर के बाद कोalitions ऑफ द विलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था, और नेटो इज नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ कोalitions ऑफ द विलिंग, क्योंकि नेटो की जो ओरिजिनल रैशनलाइजेशन थी वो तो खत्म हो गई आफ्टर द एंड ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो अब नेटो कोalitions ऑफ द विलिंग कर रहा है, आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस कर रहा है, विच आर वेरी डेंजरस। और चाइना के पे जो टारगेटिंग हो रही है by the US and its allies including the Europeans actually, वो अगर आप देखें तो at some stage चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी और ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी आपको। और मैं समझती हूँ ईरान टर्की के साथ जो लिंक आ रहा है, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट।
और मैं समझती हूँ ये और बढ़ता जाएगा। अफ्रीका में चाइना हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, वो पूरी मार्केट्स अगर इफ यू गो अलोंग विद द चाइनीज वो खुलेंगी आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज देयर फॉर यू टू टेक, बट दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू, क्योंकि दूसरे कोर्सेज आपके लिए रिस्ट्रिक्टिव हैं। आप अभी भी देख रहे हैं हिंदुस्तान के लिए ना यूरोपियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन हिंदुस्तान के खिलाफ लेना चाह रहे हैं, अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाह रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे how much can you expect from these western countries or from the US? Okay. एक तरफ हम बात करते हैं इंडिया में इंडियन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पे जो मजालिम होते हैं हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ, जो इंडियन आर्मी वहाँ पे जो कुछ कर रही है। एक तरफ तो ये सिनेरियो है, दूसरी तरफ आपकी अपनी गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी पार्टी है वो बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्संस हैं उनके अवली आवाज उठाते हुए वो आपकी गवर्नमेंट से अलग हो जाती है। इसी तरह से इस मुल्क में जो है वो राव अनवर जैसे लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उसके बाद वो रिटायर भी हो जाते हैं। इस मुल्क में जो आपका बहुत जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके घर की खवातीन जो है वो दूसरे घरों पे छापे मारती हैं और उसके बाद वो दूसरी खवातीन को अरेस्ट करती हैं, तो जो केस है वो कोर्ट से खत्म कर दिया जाता है। एक तरफ तो हम देखते हैं, हम आवाज उठाते हैं सबके लिए, लेकिन अपना घर हम सही नहीं करते। जबकि इमरान खान का कहना ये था कि अगर अगवाकार रहेंगे या मैं रहूंगा, जब ये गवर्नमेंट नहीं आई थी, और उस हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज बहुत से लोगों को उठा लिया जाता है, वो मिसिंग हो जाते हैं और उसके बाद उनकी फैमिलीज उनको ढूंढती रहती हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। वो जिस तरह जो कुछ होता है वो सबके सामने है। उस पर मैं आपका व्यू चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगी, आप इसको पहले किस तो नजर से देखती हैं, और इस आपने इस प्राइम मिनिस्टर से इस हवाले से कोई बात की है, इस पे क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की, बिकॉज के हालात तब्दील ही हुए इस हवाले से। पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि देखिए ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, तो उसका स्टेटस फर्क है। हम हिंदुस्तान के जो 17 अदर इंसर्जेंसीज हैं उस पर बात नहीं करते, वो भी हम कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान और IOJK को आप इक्वेट कर नहीं सकते लीगली। दूसरा ये हैविंग सेड दैट, मैंने शुरू में सबसे कहा था कि मैं तो बिल्कुल एंटी खिलाफ हूँ इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के। हमने इसी वास्ते लेजिस्लेशन तैयार की थी। मैं तो समझती हूँ ये किसी जमहूरियत में एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आप लोगों को रात के अंधेरों में गायब कर लें और उनकी फैमिलीज को पता न चले उनकी फैमिलीज ने क्या किया, जो उनपे जुल्म, ये एक किस्म का जुल्म ही है कि उनको पता ही नहीं, 10-10 साल गुजर जाते हैं, उनको पता नहीं उनके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हुआ है। तो ये नहीं चल सकता एक जमहूरियत में। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरी व्यूज बहुत वाज़ेह तौर पे पता है, उनको उनकी व्यूज भी मुझे पता है, एंड उनकी ये ह्यूमन राइट्स पे बड़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। और मैंने उनसे बहुत दफा इस पे बात की है। मैंने बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से इस पे बात की और उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा कि सही कह रहे हैं और ये होना चाहिए, कुछ टाइम हम ले रहे हैं। तो ये किसी ने मुझे ये नहीं कहा, जिस स्टेक होल्डर से मैंने बात की है, कि ये अच्छी चीज है। सब कहते हैं गलत है, फिर हम क्यों नहीं इस पे मूव कर रहे? हमारा कानून पड़ा हुआ है लॉ मिनिस्ट्री में, इसको हमें क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। अगर हमारे बाकी कवानीन जो एंटी टेररिस्ट कवानीन है, जो और कवानीन है, उनमें कमजोरियां हैं तो आप उनको स्ट्रेंथन करें और इसको खत्म करें, इसको क्रिमिनलाइज करें। तो मेरी व्यूज ऑन इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बिल्कुल क्लियर है। मैं इसको 100% अपोज करती हूँ, कोई जस्टिफिकेशन इसकी नहीं बनती। दूसरी चीज ये कि अगर कोर्ट्स किसी को रिहा करती हैं तो हम क्या करें? कोर्ट्स आजाद हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सख्त रिफॉर्म की जरूरत है। अब आई एम टोल्ड के लॉ मिनिस्ट्री रिफॉर्म की तरफ जा रही है, ये हमें करना पड़ेगा। हमने पिछली हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सटेंड किया, इसी कंडीशनैलिटी पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंक्लूडिंग हमारी जो ऑपोजिशन में थी, हमने एक्सटेंशन दी थी कि हुकूमत मीनवाइल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म लाएगी ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए, तो आपको जरूरत ना पड़े मिलिट्री कोर्ट्स की। उस पर कुछ काम नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो ये हमने स्ट्रेंथन करना है अपना जुडिशल सिस्टम,
ताकि जो राव अनवर जैसे लोग को सजा मिले और जल्द सजा मिले। और क्या कहते आप ये औरतों के साथ जो तशद्दुद होता है और फिर फैमिली पैचअप कर लेती है क्रिमिनल्स के साथ, औरतों के कत्ल आम होते हैं और फैमिलीज माफ कर देती हैं, लेकिन मर्डर को रियासत को जरूरी नहीं होता कि वो माफ करे। रियासत फिर भी केस परस्यू कर सकती है और करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये अगर जब एक कत्ल हो जाता है तो रियासत हैज टू परस्यू इट एज मर्डर। ये सिर्फ ब्लड मनी के कहने पे आप कातलों को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। रियासत का अपना एक होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना। तो ये देखें, हमारी जो हुकूमत कुछ चीजें खुद कर सकती है, लेकिन जब आपकी कोर्ट स्ट्रेंथन होंगे, जब आपकी जुडिशरी स्ट्रेंथन होगी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर होगा, फिर हर चीज सही चलेगी। सिर्फ हुकूमत हर चीज नहीं कर सकती। इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, और बात यह है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स पे हमें कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आती। जुडिशियल एक्टिविज्म तो हमें बहुत नजर आता है इस मुल्क में, पिछले बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, आप एक लेकिन कॉन्वर्सेशन करें ना लॉ मिनिस्टर से। लेकिन मैं आपका व्यू चाहता हूँ, बिकॉज के आप यू आर वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट एंड यू आर वन ऑफ द इनिशियल मेंबर्स ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। फिर आपका अपना एक व्यू है, अपनी आपकी एक सोच है, और एक बड़ी वाज़ेह सोच है, बड़ी ब्लंट आप बात करती हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे काम नहीं हो रहा, लाखों केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग में हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो डाउनफॉल की शिकार हो रही है। क्या इस पे आपका व्यू है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस पे क्या कैबिनेट में बात नहीं होती? देखें, जुडिशियल रिफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जहां तक याद पड़ता है एटलीस्ट हर तीसरे चौथी कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर रिमाइंड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो नहीं जुडिशियल रिफॉर्म्स कर सकते, ये लॉ मिनिस्ट्री पूरी है, आपके पास लॉ मिनिस्टर हैं, फिर आपके पास और बड़े इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट हैं जो कि वकला हैं। इन सबको चाहिए कि करें। हम तो खुद कहते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स करें जल्द अज जल्द, ताकि लोगों को इंसाफ मिले। हम आए इस प्लेटफॉर्म पे हैं करप्शन खत्म करने के लिए, हर शख्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंसाफ। तो आप इंसाफ अगर नहीं दे सकते तो फिर आप फिर आप अपना जो आपकी वजह थी लोगों से वोट मांगने के लिए, हम लोगों को फेल कर रहे हैं। तो इस वास्ते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी होने चाहिए और कहा भी गया है। और लोगों ने लॉ मिनिस्ट्री से हमें आया है जवाब कि हम तैयार कर रहे हैं। 2 साल हो गए। आई एम होपिंग कि अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स इस साल के एंड तक आ जाए हमारे सामने, ताकि कुछ पता तो चले। लेकिन ये मैं बताती चलूं, हमने एक फॉर्मलाइज कर दिया स्ट्रक्चर लीगल एड का फाइनली। तो लीगल एड अब will be accessible to everybody in a formal structured way। और दूसरा, हमने क्या कहते ये जो प्रेसिडेंट को मर्सी पिटिशन जाती थी, वो गुम जाती थी इन द प्रोविंसेस, वो प्रोसीजर भी हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है। और अब 4 स्टेप्स उसके बन गए हैं रादर देन द अननोन स्टेप्स जो पहले होते थे। हमने एक फॉर्म क्या कहते कंप्यूटराइज फॉर्म तैयार कर दिया है फॉर द मर्सी पिटिशन टू बी फिल्ड बाय द जेल सुपरिंटेंडेंट। कई प्रोविंसेस इसको ठीक तरह इन्फोर्स नहीं कर रहे, उनको पीएम ऑफिस से स्पेसिफिकली रिमाइंडर गया है कि ये अब अप्रूव हो गया है एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही हैं, लेकिन वॉल्यूम में होनी चाहिए रिफॉर्म्स। लेकिन जिस स्पीड पे होनी चाहिए और वॉल्यूम में होनी चाहिए रिफॉर्म्स, और होनी चाहिए। आई एग्री विद। ओके ओके ओके
बंद हो गया। आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ब्रेकिंग आ रही है, अब आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं कि जो नैब के लॉज हैं, इस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स नैब के लॉस पे मिस्टर इमरान खान ने बिजनेस कम्युनिटी और जो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो नैब के लॉज हैं उसको उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो भी एनवायरनमेंट इस वक्त नैब की जैसे उसमें जो इन्वेस्टमेंट कमिट है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा। और ये ऐसा लगता है कि नैब जो है ना वो सियासी इंतकाम का इदारा बन चुका है। तो इस सिलसिले में आपकी जो मिनिस्ट्री है वो नैब को किस तरह से देखती है और इस हवाले काम है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आपकी बेल नहीं होती और महीनों महीनों वो विदाउट एनी कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनकी कोई बेल नहीं, 6-6 महीने लोग पड़ रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं और उस वजह से हो रहा जो पाकिस्तान के जो टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, वो अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं जा रहे। आपका क्या व्यू है इस पे? देखिए, हम नैब रिफॉर्म कई अरसे से चाह रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ डायलॉग चल रही है। कभी ऑपोजिशन कुछ एक्सेप्ट करती है, कभी वो नहीं एक्सेप्ट करती। आपको पता है सबसे ज्यादा सियासी नुकसान पीटीआई को हो रहा है जिस तरीके से नैब फंक्शन कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो आज लाहौर में हुआ है अफसोसनाक वाकया, जो कि ऑपोजिशन वाले गाड़ियों में पत्थर लेके आए थे, प्लान्ड अटैक एक नैब के दफ्तर पे हुआ, दैट शुड नॉट बी डन ईदर। लेकिन डेफिनेटली नैब का रिफॉर्म जरूरी है। देखिए, हमने ना ये नैब कानून बनाया, ना हमने नैब हेड को सिलेक्ट किया। हम तो कब से चाह रहे हैं, जब से हम आए हम बात कर रहे हैं नैब रिफॉर्म्स की, लेकिन ऑपोजिशन हमारे उसमें सपोर्ट नहीं दे रही। अनफॉर्चुनेटली जो नैब ऑर्डिनेंस था, जो चेंज आया था, वो लैप्स हो गया है। अब वो बिल ऑपोजिशन अप्रूव नहीं करेगी तो हमारे पास इतने नंबर्स ही नहीं है कि हम दोनों हाउसेस से पास कर सकें वो बिल को। तो इसमें अगर ऑपोजिशन सीरियस है नैब रिफॉर्म में, वो सीरियस तरीके से बातचीत करे। वो कभी बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर वो बैक डाउन कर जाते हैं। मैंने तो ये अपने सामने देखा है पार्लियामेंट में, जिस तरीके से नैब लॉस पे ऑपोजिशन आ रही है और फिर नहीं बात कर रही, फिर आ रही है। तो अनलेस दे सपोर्ट अस, हम ये कानून नहीं बदल सकते। हम ऑर्डिनेंस के थ्रू कितनी देर तक करते रहेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि नैब पे हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमारे अपने चीफ मिनिस्टर समन हुए, मुझे बताएं किस हुकूमत में चीफ मिनिस्टर समन हुए हैं नैब के सामने? हमारे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को समन किया गया है नैब ने। तो अगर वो अपने उस पे चल रहे हैं और सियासी सारा जो प्राइस है वो पीटीआई पे कर रही है कि किसी तरह, जैसे कि जो नैब कर रही है वो पीटीआई करवा रही है। ये नहीं है, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, ना हमने कानून बनाया, ना हमने नैब के लोग अपॉइंट किए। तो ये ऑपोजिशन को चाहिए बैठ के पूरा नैब लॉ रिफॉर्म करें, बिल इख्तियार करें जो पार्लियामेंट में जल्द से जल्द पास हो। दैट्स द ओनली वे। जब तक आप ये पूरा रिफॉर्म नहीं करेंगे कानून के तहत, आपको ये चलती रहेगी कंट्रोवर्सी। आज हम पावर में, कल कोई और पावर में आएगा। ये इट्स लाइक अ डेमोक्रेसी सॉर्ड। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और रिफॉर्म के थ्रू चेंज करना होगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी करप्शन के खिलाफ तो हमारा एक मिशन है जो जारी रहेगा। आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात की, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब क्या वाकई पीटीआई की आइडेंटिटी है, नए पाकिस्तान की आइडेंटिटी है? क्या आप समझती हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ये वहाँ पे कोई काबिल जिक्र कारदगी पेश कर सकेंगे? आपके कोई भी मिनिस्टर को आज तक मैंने उनको ऑफलाइन सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। तो क्या ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की अपनी जिद है या वाकई कोई ऐसा वो कारनामा पंजाब में कर रहे हैं
कि उनको सस्टेन अभी तक किया जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बड़ा कैंडिड फीडबैक सिर्फ ऑपोजिशन का नहीं है, बल्कि जो पीटीआई के प्रीवियस सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से फीडबैक आता है, लेकिन लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। इस पे आपका अपना पर्सनल व्यू है। आई वांट टू नो योर पर्सनल व्यू। To be very honest, ever since I've been in this ministry, I've been busy with the human rights ministry का काम. पंजाब मेरी constituency, yes, मैं राजनपुर से हूँ, but क्योंकि I'm not an elected constituency politician, मैं तो reserve seat पे आई हूँ, तो जो constituency politicians पंजाब के हैं वो बेहतर जानते हैं क्या हालात हैं पंजाब के, और मैंने क्रिटिसिज्म भी सुनी है, तारीफ भी सुनी है. फ्रैंकली ये सवाल आप उनसे बेहतर वो बेहतर जानते होंगे क्या हालात हैं पंजाब के. बहुत क्रिटिसिज्म भी आ रही है, लेकिन कई चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं पंजाब में. लेट्स होप के बेहतर हालात हो, बट आई फ्रैंकली मैं समझती हूँ ये दिस नॉट माई प्लेस एट द मोमेंट टू कमेंट, क्योंकि मैं पूरी तरह जानती नहीं हूँ कि क्या एक्चुअली हो रहा है सियासी तौर पे पंजाब में. सही. अच्छा, एक और हम आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं अपने डायलॉग के, और मेरा लास्ट पे आपसे सवाल ये होगा कि जो 2 साल आपकी गवर्नमेंट को इस वक्त हुए हैं, और बहुत सी चीजों पे कुछ काम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत सारे आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही. बिल्कुल. तो आप मुतमईन हैं पीटीआई के, आपको ये है, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में जो भी आपका रोड मैप होगा, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, वो ऐसी होगी कि उससे पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, आपका एक कामयाब टेन्योर पीटीआई गवर्नमेंट का होगा, जिसका आपने क्लेम किया था आपकी गवर्नमेंट में? मैं समझती हूँ कि इतना होप और कॉन्फिडेंस मुझे ये है कि हम अपने एजेंडा पे चलते रहेंगे. हमें सेटबैक्स हुए हैं बहुत, लेट्स बी वेरी क्लियर. जो स्पीड पे हम जाना चाह रहे थे हम नहीं जा सके, फिर बहुत से और मसले मसाइल, हम वी डिडंट रियलाइज कितने बुरे इकोनॉमिक हालात में पिछली हुकूमतें छोड़ के गई हैं मुल्क को. वो हमारे लिए एक अवेकनिंग थी. बहरहाल कुछ हमें और सेटबैक्स भी हुए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ वी हैव रिजन वेल फ्रॉम द सेटबैक्स. द बिगेस्ट एग्जांपल है जो हमारा कोविड का हैंडलिंग हुई है. आप हमारा देख लें, पाकिस्तान का हाल, आप अमेरिका का देख लें, हिंदुस्तान का देख लें, तो यू विल नो कि वी हैव हैंडल्ड इट वेल थ्रू ट्रायल एंड एरर, लेकिन हमने इवेंचुअली अच्छी हैंडलिंग इसकी की है. तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वी होप टू अचीव what all our goals, but if we don't achieve all our goals, कम से कम 80% तो हमें अचीव करने चाहिए. मैं समझती हूँ कि ये हमारी एक क्या कहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम ये गोल्स अचीव करें, क्योंकि हम कमिटमेंट करके आए हैं कि दीज आर आवर गोल्स, और अगर हम नहीं करेंगे तो पॉलिटिकली हमें नुकसान होगा अगले इलेक्शन में. और ऑन ट्रैक हम हैं. क्या कहते हैं, स्पीड हमारी स्लो डाउन हो गई है, बट आई थिंक हम ऑन ट्रैक हैं. एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में कई चीजों पे हम बहुत स्लो डाउन हो गए, जैसे इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, बट बाकी और चीजों पे हम बहुत जल्द आगे जा रहे हैं. मैं समझती हूँ हमारी अपनी मिनिस्ट्री की अचीवमेंट्स अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस काफी हैं, और बड़ी मेहनत करके हमने ये अचीवमेंट्स किए हैं, और अभी हम आगे और बढ़ते जा रहे हैं. इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ सितंबर में हम पूरा अपना 2 साल का परफॉर्मेंस का क्या कहते एक बुकलेट छापेंगे कि क्या क्या हमने किया है, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऐसी मिनिस्ट्री है दैट टेंड्स टू गेट इग्नोर्ड बाय एंड लार्ज. अनलेस कोई कंट्रोवर्सी उठती है तो फिर लगता है जी आप ह्यूमन राइट्स वाले कुछ कर नहीं रहे. तो वी नीड टू टेल पीपल कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं. हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बेहतर हो गए हैं. अगर आप इंसानी हुकूक को देखें 3-4 साल पहले और क्या हो रहा था उस वक्त और अब जो हो रहा है, तो यू विल नोटिस अ बिग डिफरेंस.
एंड मैं समझती हूँ अगर इसी हम अपनी कमिटमेंट पे चलते गए तो इंशाल्लाह वी शैल अचीव ऑल दैट इज पॉसिबल फॉर अस टू अचीव. आखिरी में हम बात करेंगे जो हमारा ओवरऑल मुल्क का सिस्टम है, जो बेसिकली पाकिस्तान में चारों सूबों को हम देखते हैं, उसमें 18 अमेंडमेंट की बात होती है, आजकल उसमें पीएफसी की बात चल रही है, फाइनेंस कमीशन की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात होती है, यहाँ पे नए सूबों की बात होती है. ओवरऑल जो मुल्क का सिस्टम है उसमें नजर ये भी आता है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, इमरान खान जैसे कहते हैं लोग कि 10 लोग आ जाएं, शायद मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा, बिकॉज कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, जो जुडिशल ओवरऑल हालात हैं. आप क्या समझती हैं कि ओवरऑल एक मेजर रिफॉर्म्स के लिए एक मेजर क्या शिफ्ट आपको लेना चाहिए? क्या आपकी नजर है पाकिस्तान के मौजूदा निजाम के ऊपर? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. फ्रैंकली अगर मेरे पे छोड़ा जाए, सबसे पहले मैं ब्यूरोक्रेसी को चेंज करूं. हमारा पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, जिधर कॉन्सेप्ट होता था सर्वेंट का, गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट टू द कॉलोनियल पावर्स. तो जो ब्यूरोक्रेट आता है उसकी ट्रेनिंग में यही होता है कि आई एम द कॉलोनियल मास्टर नाउ टू रूल ओवर द ऑर्डिनरी सिविलियंस एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. हमने ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चेंज करना है. आजकल एज ऑफ स्पेशलाइजेशन है. हमारे फॉरेन ऑफिस में, ये तो हमारे मैनिफेस्टो आप पढ़े, फॉरेन ऑफिस का तो स्पेसिफिकली लिखा है कि इसकी रिक्रूटमेंट चेंज होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट आने चाहिए. आपको पता है हमारे फॉरेन ऑफिस में इंटरनेशनल लॉ का डिपार्टमेंट ही नहीं है. एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लगता उनके पास एक भी इंटरनेशनल लॉ का बंदा है. अगर अब रख लिया हो तो पता नहीं. सो आप हाउ कैन समबडी जिसने फॉरेस्ट्री में मास्टर्स किया हो, आप उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगा दें या फॉरेन मिनिस्ट्री में लगा दें, उसने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, उसको क्या आइडिया होगा दुनिया का? तो यू नीड स्पेशलिस्ट. ये पुराना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, पास डीएमजी था, फिर पास जो, ये सारा खत्म होना चाहिए. आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत रिफॉर्म ला रही है. मेरा अप्रोच फर्क है. आई विश वी कुड जस्ट चेंज इट ओवरनाइट एंड ब्रिंग अबाउट अ न्यू स्ट्रक्चर कि हर मिनिस्ट्री अपनी रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट की करे एंड नॉट जनरलिस्ट. फिर आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में देयर टू मेनी पीपल एट द लोअर रैंक्स, काम नहीं है उनके पास, एंड दे जस्ट, फिर उनकी पेंशन्स हैं, फिर 10 चीजें हो. तो ये पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदर इट्स in the economic structural reform, especially FBR का, whether it is bureaucracy का reform, ये सारी चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी अगर आपने मुल्क की तरक्की की तरफ लेके जाना है. ये दुनिया बदल गई है. हम अभी तक 19th-20th सेंचुरी में मुश्किल से आ रहे हैं. इस तरह नहीं चल सकता. टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन अस, सिस्टम्स हैव ओवरटेकन अस, हम अभी घसीटते आ रहे हैं. इस वास्ते आप देखेंगे हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्यों इतना फर्क है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर अभी वो ड्रैग ऑन करता जा रहा है जो कॉलोनियल लेगेसी हमने अभी तक इनहेरिट की थी. हमारे रेलवेज देख लें, वही ब्रिटिश स्टाइल चले आ रहे हैं. हमने रेलवे ट्रैक्स भी बहुत कम नए बनाए हैं. वही सारा सिस्टम, ये आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैं गवर्नमेंट में नहीं आई थी मुझे नहीं पता था कितना डिकेइंग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है हमारा इस मुल्क का. इट्स टेरेबल. अच्छा, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि रिसेंट लास्ट वीक में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, और ये हमें मालूम भी है कि सऊदीया से हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही. ये लास्ट ईयर से ही मामला ऐसे ही चल रहे हैं, और अब उन्होंने आपसे पेमेंट भी मांग ली. एक पेमेंट मांगी है, एक आपकी चली गई है चाइना से लेके, एक और पेमेंट की भी बात आ रही है. क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं, और क्या फॉरेन पॉलिसी जो आपकी है सऊदीया के साथ वो आप चेंज होती हुई देख रही हैं? जो स्टेटमेंट था ऑफ कोर्स वो आइसोलेशन में तो शाह साहब ने नहीं दिया होगा, वो ऑन बोर्ड होके दिया होगा चारों तरफ से. क्या व्यू है आपका एज नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट?
Frankly, I can tell you it was not a well thought out statement. I think it flowed on the heat of the moment, or frankly, I think it was not good. Foreign ministers have to be very refrained in the statements they give, because फिर वो एक फैक्ट बन जाता है. जो assumption होती है, चाहे दुरुस्त हो वो assumption, जब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसकी मिनिस्ट्री ये इश्यू से डील करी है, वो एक ऑन फैक्ट स्टेटमेंट दे देता है कि ये इस वजह से हमने ये नहीं किया, तो वो फिर एक स्टेटेड फैक्ट हो जाता है, और that is harmful for Pakistan. But so I can assure you, it was not a pre-planned statement. I think it was in the flow of the moment, or the heat of the moment, but it was in my view it was a mistake. So I think we have fences to mend. Saudi Arabia हमारा एक बहुत पुराना ally है, जिसने हमें बड़े मुश्किल वक्त में सपोर्ट दी है और देता रहा है, तो हम इस तरह इस रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकते. और आई एम नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जिसे कह रहे हैं सपोर्टर्स जो समझे जाते हैं, बट अ कंट्री हैज टू लुक आफ्टर इट्स एलाइज, स्पेशली इन इस वक्त में जबकि मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए. तो जो आपके पुराने एलाइज हैं, जो आपको सपोर्ट देते रहे हैं, उनका आपको ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेंसिटिविटीज का आपको ख्याल रखना चाहिए. हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी हमारी सेंसिटिविटीज देखनी चाहिए, खास तौर पे जो मुसलमानों के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है हिंदुस्तान में और कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में. लेकिन आई थिंक डिप्लोमेसी के थ्रू एक तरीक़ेकार होता है, और मैं समझती हूँ देयर आर फेंसेस टू बी मेंडेड. The way forward for Pakistan. What is your closing remark? I think way forward for Pakistan is strengthening the civilian structures. जमहूरी structures को आप मजबूत करें. Civilian हुकूमत को must strengthen itself and assert itself. और जमहूरियत और democracy is the only way forward for Pakistan. क्योंकि हमने बाकी डिक्टेटरशिप्स, ज्यादा तौर पाकिस्तान डिक्टेटरशिप्स के अंदर रहा है, और मैं समझती हूँ कि उसमें कोई बेहतरी नहीं आई. इस वास्ते जहाँ लोग अपनी राय एक्सरसाइज कर सकें जमहूरियत के थ्रू, ये रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, मेरिट, ये सारे जमहूरियत को मजबूत करते हैं. ये कॉज पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, इसकी कीमत भी हमें देनी पड़ेगी. शॉर्ट रन में अगर कीमत ज्यादा है वो देनी पड़ेगी, लेकिन एंड में हमें ये जमहूरी तरीका अपनाना पड़ेगा अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए. और करप्शन को भी खत्म करना होगा. जब तक करप्शन रहेगी इस मुल्क में, इंसाफ नहीं मिल सकेगा लोगों को, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा. रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो जमहूरियत कमजोर होती जाएगी. इट्स अ सिंपल फॉर्मूला. इसमें इट्स नॉट, you don't need a genius to understand it, but you need a strong leader, and I think Pakistan has that leader in Prime Minister Imran Khan to ensure कि democracy strengthen हो, civilian government assertive हो ज्यादा, और पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से आगे लेके वे फॉरवर्ड यही है. बस बहुत शुक्रिया शीरी आपका आज की इस डायलॉग का, और आई थिंक ये बड़ी प्रोडक्टिव डायलॉग थी. डिफरेंट इश्यूज पे हमने बात की जो नॉर्मली मीडिया पे आपके साथ नहीं हो रहे होते. आप लोग ज्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, और आपके शुक्रिया के साथ मैं सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे फेसबुक पे, उनको मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर पार्टिसिपेशन. हमारा जो यूट्यूब चैनल है नटशल कॉन्फ्रेंस का, उस पर आफ्टर 2 आवर्स हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, और उसके बाद आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. कल रात को 9:30 पे हमारा एक और डायलॉग है, वो साउथ एशिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है, जो उसका फ्यूचर है आफ्टर द कोविड, उस पे हम कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन विद ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम यूएस, उनका साउथ एशिया सेंटर, और इसमें उनके प्रेसिडेंट ब्रूस कॉनेल हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, इकराम सहगल हैं,
और एक डॉक्टर जगन्नाथ पांडा हैं, एंड देन वी हैव विद अस फरवा आमिर जो हमारी यहाँ पे मॉडरेटर होंगी, और श्रीलंका से हमने नेथन हमारे एक दोस्त हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो आईटी एक्सपर्ट हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में भी की है, साउथ एशिया की सारी कंट्रीज में उनकी इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनली भी वो कर रहे हैं। इन 5 का पैनल बना के रात को 9:30 हमने इसको होस्ट करना है। तो एक दफा फिर हम कल हाजिर होंगे, और जब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।